Good morning, kids. In previous lecture, we have done the chapter rounding numbers. In rounding numbers, one correction is there. Sorry for inconvenience. In exercise 7.1, 7.2, 7.3, the question number 2, what numbers could be rounded to? I have told that it means how many numbers are there. When we rounded them, their answer becomes A part is 60. Their answer becomes 60. I have told you that the numbers are 55, 56, 57, 58, 59. But no need to write 60. I have told you, but you have to write beta. In exam, if there is a question, find round the number 60 to the nearest 10. Their answer is 60. It means we have to write 60. In every question, we have to write the number itself. Okay, beta? Very good. Now, in today's lecture, we have to start the new chapter, chapter number 4, fraction. Today's topic, which we have to start, that you already studied in earlier classes, right? That what is fraction, you know very well. What is fraction? Fraction is a part of whole. It is denoted by, for example, we have 4 by 6. This is a fraction. This 4 is called numerator and the 6 is called denominator. This is called fraction. Means what is 4? This is the part of a whole. 4 is a part of 6. It means fraction is a part of a whole. In fraction, there is numerator and denominator. For example, we have a figure. When an object is divided into 7 parts, this is an object. For example, this object is divided into 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 parts. Then these 3 are the part of 7. Means 3 is a part of a whole number. Yes, today we have learnt about chapter 4, addition of fractional numbers. Now you know what is fraction. Now we have to start addition of fractional number. Now, first addition of like fraction. Exercise 4.1, question number 1, A part. Add the following, that is 2 by 8 plus 3 by 8. Bache, these are like fraction. Now what is like fraction? Type of fraction whose denominators are same. When two fractions are there, their denominators are same, that are called like fractions. Simple to add like fractions. Simply add the numbers. What numbers? That is 2 plus 3 and write the common denominator. The common denominator is 8, which gives us our answer. 2 plus 3, 5 by 8. This is our answer. Very simple when we have to add like fractions. B part is same. Try yourself. Now C part, 2 by 15 plus 4 by 5. Now these are unlike fractions. How can you say that these are unlike? Because their denominators are not same. Means different denominators. Now what to do? These type of fractions, how to add them? When fractions are unlike, we have to take their LCM. That is step 1.
take LCM of denominators, that is 15 and 5. Now you know very well how to take LCM by prime factorization or division method. Firstly, choose the smallest prime number. 3 5s are 15. 5 नहीं जा रहा उस पे. Now we choose 5. 5 1s are 5. 5 1s are 5. It means our LCM is LCM of 5 and 15 is equal to 15. Now what is step 2? Convert the fraction to their respective equivalent fractions. Convert the fraction, हमने इन fractions को equivalent fractions में बनाना है ताकि उनका जो denominator है वो same हो जाए. अब कैसे बनाएंगे बेटा, ध्यान से देखना. हमने LCM ले लिया उसका 15. We have taken LCM 15. Now हमने equivalent उसको कैसे करना है. सबसे पहला step, हमने उसके LCM को जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करना है. पहला स्टेप क्या है, डिवाइड करना है. 15 को हमने 15 के साथ डिवाइड किया. आंसर क्या आया हमारा, 1. व्हेन 15 डिवाइड्स बाय 15 वी हैव आंसर इज 1. नाउ व्हाट इज सेकंड स्टेप. जब हमने 15 को 15 से डिवाइड कर लिया, जितना हमारे पास क्वोशिएंट आया, यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आया 1, उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. 15 को 15 के साथ डिवाइड किया 1, 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2s are 2. बच्चे एक दो क्वेश्चन करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ये एलसीएम लेना. ये एलसीएम ही है और ये आगे हायर क्लासेस में बहुत यूज होता है, तो इसको ध्यान से करना है, भूलना बिल्कुल नहीं है. अगेन डिवाइड 15 बाय सेकेंड फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 5. Now when 15 divides by 5, we have the quotient 3. 3 quotient आया, अब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, न्यूमरेटर के साथ. 3 should be multiplied by 4, the numerator. 3 4s are 12. Now what is our answer? Simple, denominator same हो चुका है. 12 plus 2, 14 by 15 is our answer. Very easy beta, but you have to do practice of these questions. Look at one more question, D part. 3 by 8 plus 5 by 16. What is step 1? We have to take LCM of 8 and 16. 2 पे डिवाइड हो रहा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. 2 4s are 8, 2 8s are 16. 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are, क्वेश्चन 1 हो गया. अब एलसीएम क्या है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. एलसीएम ऑफ 8 and 16 इज इक्वल टू 16. अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 16 लेके आना, मीन्स कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है हमने. 16 इज आवर एलसीएम. फर्स्ट है डिवाइड करना है हमने एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ. जब डिवाइड किया 16 को 8 के साथ, व्हाट इज क्वोशिएंट हियर, 2. 2 इज अ क्वोशिएंट. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद द न्यूमरेटर. 2 3s are 6 है. 16 डिवाइड बाय 16, दैट इज 1. 1 5s are 5. वेरी इजी. 6 plus 5, 11 by 16. This is our answer, D part. If you look at the I part, 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6. Again same, here are 3 fractions. No need to worry. If there are 3 fractions, we have to take LCM of these 3 fractions, denominators, that is 4, 5 and 6. Take LCM. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 1s are 5. Now what is LCM here? 2 into 2 into 3 into 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are
60. Now 60 LCM. Next step same. We have to make denominator equal of 3 fractions. 60 है, 60 डिनोमिनेटर, क्योंकि LCM इनका 60 है तो हमने 60 डिनोमिनेटर बनाना है. क्या करेंगे, 4 को 60 से डिवाइड किया. जब 4 को 60 से डिवाइड किया क्या आया, 15. यू कैन डिवाइड, अगर आपको मुश्किल लगता है सीधे डिवाइड करना नहीं आता तो आप डिवाइड कर सकते हो. एक और मेथड बताऊं इजी. जब हमने यहाँ पे 4 है हमारे पास फ्रैक्शन में, यहाँ पे 60, हमने LCM 60 लिया ना, हमने 4 को डिवाइड करना है. 2 2 ज़ा 4 होता है. 4 को साइड करके देखो क्या आंसर बच रहा है हमारे पास, 5 3 ज़ा 15. इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे 15. 15 1 ज़ा डिवाइड करके 15 आया, उसके बाद न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी तो करना है. 15 1 ज़ा 15. सेम अब 5 है, 5 को हाइड कर लो. 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12. 12 1 ज़ा 12. डिवाइड करके जो भी आ रहा है उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, ये ध्यान रहे. यहाँ पे तो 1 है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाना था अगर हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई ना करें. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हमने LCM निकाल के उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है, उसके बाद न्यूमरेटर के साथ जो क्वोशंट आया उसको मल्टीप्लाई करना है. अब हमारे पास है 6. अब 2 3 ज़ा 6 है, इसको हाइड कर लिया, क्या बचा 5 2 ज़ा 10. 10 1 ज़ा 10. ये इजी है ना, ध्यान से करना. 15 प्लस 12 क्या होता है, 15 प्लस 12 27. 27 प्लस 10 37. नाउ आवर आंसर 37 अपॉन 60. यस बेटा, नाउ ऑल अदर पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ. डोंट वरी कि मैम इतना ज़्यादा होमवर्क दे रही है. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, यू कैन चेक from the notes your answer. Now let's start second question. We have to start the second question. Add the following. Same है, वहाँ पे simple fractions थे, यहाँ पे mixed fraction है. A part क्या है हमारा, 3 1/2 plus 4 1/2. आपको पता है mixed fraction कैसे खोलते हैं, that is very easy. mixed fraction कैसे करना, सबसे पहले डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई. 2 3 ज़ा 6. उसके बाद जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको उसमें ऐड कर देना. 2 3 ज़ा 6. 6 प्लस 1 7/2. अगेन 2 4 ज़ा 8. 8 प्लस 1 9/2. वेरी सिंपल. अब तो आपको आता ही है, हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है ना, डिनोमिनेटर कॉमन है और ऊपर वाले को ऐड कर दिया. सिंपल. 9 और 7 कितने होते हैं, 16. 16/2. अब हमने ये आ रहा है 16/2, तो ये कट हो रहा है ना सेम टेबल पे. 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16. तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8. हमने उसको सिंपल टर्म में लेके आना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में. 16/2 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 कॉमन था तो मैंने डिवाइड किया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 8. लुक एट वन मोर क्वेश्चन. F पार्ट. 8 1/2 प्लस 2 7/9 प्लस 3 5/12. Again take LCM. Firstly open the mixed fraction. 8 2s are 16. 16 plus 1 17/2. 9 2s are 18. 18 plus 7 25/9. 12 3s are 36. 36 plus 5 41. Now take LCM of denominators 2, 9 and 12. Firstly divide by 2. 2 1s are 2. 2 6 are 12. Again divide by 2. Now divide by 3. What is LCM? 3 3s are 9. 9 4s are 36. Now we have to
मेक द डिनोमिनेटर्स सेम, दैट इज 36। 2 से डिवाइड करना है 36 को, 2 से डिवाइड, इसको छोड़ दो, बाकी तीनों क्या बचे, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18। नाउ 18 मल्टीप्लाई बाय 17, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस 36 को 9 के साथ, ये तो आपको आता है, 9 का टेबल आता है आपको, 9 4 ज़ा 36, 4 को 25 के साथ मल्टीप्लाई, जो क्वेश्चन आ रहा है हमने उसको मल्टीप्लाई करना है। 12 का टेबल भी आता है आपको, 12 3 ज़ा 36, 41 को 3 से मल्टीप्लाई। अभी आपको करना है 17 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 41 को 3 के साथ किया, जो भी आंसर आया उसको ऐड करके हमने यहाँ लिखना है, नीचे 36, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बेटा? बच्चे नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट ए पार्ट 3/5 माइनस 2/5, सेम एज एडिशन, कॉमन डिनोमिनेटर लेके ऊपर वाली न्यूमरेटर को माइनस कर देना, 3 माइनस 2 1/5, दिस इज आवर आंसर, सिंपल। ठीक है, सी पार्ट डी पार्ट सेम है, 5/9 माइनस 3/12, टेक LCM of 9 and 12, firstly smallest, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3. Now what is LCM? 3 3s are 9, 9 4s are 36 LCM. Now you know the table of 9, 9 4s are 36, 4 5s are 20, 12 3s are 36, 3 3s are 9, 20 minus 9 11, 11/36 is our आंसर। ऐड में हमने ऊपर ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन में हमने सब्ट्रैक्ट करना है, बिल्कुल सिंपल। बच्चे बाकी पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ, ओके। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, सारी एक्सरसाइजेज हैं हमारे सिलेबस में, 4.1 से लेके 4.7 तक, एक भी क्वेश्चन कट नहीं होगा। द होल चैप्टर इज इन योर सिलेबस, सो हमें थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी, तो टेंशन नहीं लेना, मैं सारे नोट्स आपको दूंगी, आप आराम से। अब मंडे में आपको वीडियो, जब मंडे वीडियो भेजनी है मैंने, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आपके पास 3 डेज है, आप धीरे धीरे करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना और अपनी नोटबुक तैयार करना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगी हूँ। सी द क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 2/3 minus 1/5 plus 4/15. Again take LCM, 3 5 15, 3 के टेबल पे, 2 के टेबल पे नहीं जा रहा कोई भी, सीधे 5 के टेबल पे। मीन्स LCM क्या है हमारा 15, 3 5 ज़ा 15, डिनोमिनेटर किसे डिवाइड किया 5, 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 15 divides by 15, 1 1 4s are 4, 10 minus 3 7, 7 plus 4 11, this is our answer. Next, D part, 3/8 plus 3/4 minus 5/6. Again take LCM, 2 के टेबल पे, फिर से 2 के टेबल पे, फिर से 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे। क्या LCM आ गया, 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 24। अब हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है उसका 24 कॉमन, 8 3s are 24, 3 आ गया क्वेश्चन, 3 3s are 9, 4 6 are 24, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 4 5s are 20। सॉल्व करना है, यहाँ प्लस का साइन है तो 18 + 9 27, यहाँ माइनस का साइन है 27 - 27,
7/24 आर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप कंप्लीट कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, जी पार्ट करते हैं, ठीक है। लुक एट द जी पार्ट। 8 1/3 -1 1/6 -1 7/12 plus 2 5/24. It is a mixed fraction. First open the mixed fraction. 8 3s are 24, 24 plus 1, 8 3s are 24, 24 plus 1 25/3 minus 6 1s are 6 plus 7 7/6 minus 12 1s are 12, 12 plus 7 19/12, 24 2s are 48, 48 plus 5 53/24. 3 6 12 24. Denominators are different, so we have to take LCM. After taking LCM, LCM is 24. Now again divide by denominator and multiply with numerator. 3 8s are 24, 8 25 8s are 200, 6 4s are 24, 7 4s are 28, 12 2s are 24, 19 2s are 38, 24 24 को डिवाइड किया 1 153s are 53. Now by solving 200 minus 28 minus 30, 200 से 28 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से 38 को माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे 53। सॉल्व करके आएगा हमारे पास 187/24। फिर से उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना। बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब हमारा डिनोमिनेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर आर स्मॉल एंड न्यूमिनेटर इज बिगर, वी हैव टू डिवाइड देम, मीन्स हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में ज़रूर करना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो हमें उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट if numerator is bigger and denominator is small, it means we have to convert this fraction into mixed fraction. Clear beta? Now fourth question completed. All other parts do yourself beta. Next question number 5, problem sums. You can call story sums also. Read the statement. A sweet seller used 3 3/4 cups of sugar for ice cream, 2 1/2 cups for curd, 1 1/2 cups for coffee, and 2 1/4 cups for preparing halwa. Wow! मज़ा आ गया ना डिशेस का नाम सुन के? Now how many cups of sugar did he use? इट मीन्स उन्होंने इतनी शुगर उसने यूज़ की है, तो टोटल हमने बतानी है उसने कितनी शुगर यूज़ की। कप्स ऑफ शुगर यूज्ड फॉर आइसक्रीम, आइसक्रीम में उसने कितनी शुगर यूज़ की? 3 3/4 कप्स, 4 3s are 12, 12 और 3 15/4। कर्ड के लिए 2 2s are 4, 4 plus 1 5/2। नाउ हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर ही यूज्ड फॉर कॉफ़ी? 2 1s are 2 plus 1 3/2। And now used for halwa, 4 2s are 8, 8 plus 1 9/4. Now we have to tell how many cups of sugar he used by total. सबको पता है टोटल कैसे निकालते हैं हम? सारी फ्रैक्शंस को ऐड कर दो, हमारे पास आ जाएगा टोटल। मीन्स 15/4, 5/2, 3/2, 9/4। ऐड करना तो अब आपने सीख ही लिया है ना? यू हैव लर्नड हाउ टू ऐड नाउ। नाउ व्हाट इज एलसीएम? 4 2 2 4। टेक हियर एलसीएम। एलसीएम इज 4, 4 4s are 1, 1 15s are 15, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 3s are 6, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 9s are 9। Simply add them. 15 plus 10 25, 25 plus 6 31, 31 plus 9 40, 40/4। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि 4 के टेबल पे कट हो रहा है। 4 1s are 4, 4 10s are 40। इट मीन्स ही यूज्ड
10 cups of sugar. This is our answer.